الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معزز حاضرین، مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے مفصل بات رکھی گئی تھی کہ زکوٰۃ کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے مصارف جو بتائے ہیں وہ 8 مصارف ہیں، اور آخر میں علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے عام صدقات سے مسجد بننے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہاں پر مسجد اشد ضرورت ہے، مسجد ہی نہیں ہے، ایسی آخری ضرورت کے لیے فی سبیل اللہ کے تحت بن سکتے ہیں۔ اس میں بھی بعض علماء کا کہنا، وہ بھی صورت ایسی۔ سوال آج یہ ہے مسئلہ کہ اپنی سود کی رقم بینک سے جو آتی ہے، اس سود کی رقم کو کیا ہم مسجد کے ٹوائلٹ، بیت الخلائیں، سنڈاس وغیرہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے ہمارے علم میں آنا چاہیے کہ سود کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں حرام قرار دیے۔ سود کھانا بھی نہیں اور سود کھلانا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ تو ایسے تمام راستے، ایسی تمام راہیں جہاں سود کے دروازے کھلتے ہیں ایک مومن کے لیے، ان دروازوں سے مومن دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر ہم واقعی مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، شرک کے بعد سب سے زیادہ خطرناکی اگر وارد ہوئی ہے تو وہ سود خور کے متعلق ہوئی ہے، چاہے سود کھانے والا ہی نہیں بلکہ سود کھانے والا بھی اور سود کھلانے والا بھی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو سود نہیں کھا رہے، ہم تو سود کھلا رہے ہیں۔ نہیں، دونوں بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آکل الربا وموکل وشاہداہ وکاتبہ ملعون بلسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے سلسلے میں 2 گواہ رہنے والے، اور اسی طرح سود کا قرض لین دین ہو رہا ہے اس کو لکھنے والا، یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ حتیٰ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روح سے یہ تک ذکر کرتے ہیں وشاہدہ، اگر کوئی ایک آدمی دیکھ رہا ہے سودی لین دین ہو رہا ہے اور دل میں برا نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ بھی ملعون ہو جائے گا، اس زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ سود خور نہ دنیا میں چین سے رہے گا، نہ عالم برزخ میں چین سے رہے گا، اور نہ قیامت کے دن چین سے رہے گا۔ اس کے لیے چین نہیں رہے گا جو دنیا میں سود کھا لیتا ہے۔ کتنا سود؟ لاکھوں کا، کروڑوں کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم الربا، سود کا 1 درہم ہی صحیح،
दिरहम बोले तो उस दुबई का करेंसी है, उसके हिसाब से तकरीबन 25 रुपये होना, 30 रुपये होना नहीं। यहाँ पर मुराद क्या है, थोड़ा सा भी सूद अगर कोई खा लिया, हदीस में आता है कि गोया सूद के जो गुनाह हैं, दर्जात हैं, कई दर्जात हैं, उसमें से सबसे कम दर्जा 36 दर्जे, उससे कम दर्जा आदमी अपनी माँ के साथ बदकारी करने के बराबर है। नौज़ुबिल्लाह, ये सूद की मजम्मत के सिलसिले में आया हुआ। हमारे नौजवान आज इस बात में, इस रास्ते में बहुत आजाद हो गए हैं। दिल में आया बैंकों के ऑफर कबूल करते हैं, आसानी से उस बैंक से हमें सूद मिल रहा है, चलो ले लेंगे। वहां सोना गिरवी रख दिए, इधर घर गिरवी रख दिए, सूद ले लिए और आराम से उसको आसान समझ रहे हैं। कंपनियों में गाड़ियां खरीद रहे हैं, हाँ, बाइक खरीद रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में, सूद की सूरत में। ये सब चीजें, तमाम चीजें इस जिम्रे में दाखिल हो गई। इस जिम्रे में तमाम चीजें दाखिल हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया कि फकान आकिबतु अम्रिहिम अलकिल्ला, सूदखोर गरचे उसको जाहिरी तौर पर मुनाफा लगता होगा, मगर उसका आखिरी अम्र किल्लत, कमी ही होगी। अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से दुनिया में परेशान होगा। या तो सूद खाता है, बच्चों को खिलाता है, सूदी लेन देन में करता है, तो वो बच्चे जो तरबियत पाना है वो तरबियत नहीं पाएंगे, उल्टा वालिदैन के लिए वबाल बन जाएंगे वो बच्चे, सूदखोर के लिए। या फिर किसी भी तरह से अल्लाह ताला बीमारी, ऐसी बीमारी दे दिया कि ग़िज़ा कम और दवाइयां ज्यादा खा रहा है। तो ऐसी कुछ परेशानियां दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूदखोर के लिए ऐसी तंगी लाकर रखेगा ही, चैन और सुकून उसके लिए नहीं रहेगा। एक तो दुनिया का मामला हो गया, आलम बरज़ख में भी वो चैन से नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, ख्वाब में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाया गया। तो जिब्रील के साथ जा रहे थे, आपने देखा कि एक खून की नदी है, उस खून की नदी में एक आदमी गोते लगा रहा है। गोते लगाता लगाता उस नदी के किनारे आता है। उस नदी के किनारे पर एक फरिश्ता बड़ा चट्टान लेकर तैयार रहता है। जैसे ही अपने आप को बचाते हुए किनारे बाहर निकलना चाहता है, वो फरिश्ता उस बड़े पत्थर से, चट्टान से उसको दे मारता है। फिर वो लहू लहान होकर वापस उस नदी में चला। फिर बचाते बचाते अपने आप को बचते बचते बचते, तैरते 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 फिर किनारे आता है, फरिश्ता उसी तरह उसको मारता है। इस तरह मुसलसल उसको आजाद होते रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं, ये कौन है जिसको आजाद दिया जा रहा है? जिब्रील ने कहा, ये वो आदमी है जो दुनिया में लोगों का खून चूसता है, जो दुनिया में लोगों का खून चूसता है। जाहिर सी बात है, सूदखोर, मेहनत उसकी होती है, 1 लाख रुपया दे दिया किसी को भी, 1,10,000 रुपया बगैर मेहनत के ले रहा है। मेहनत होती है उसकी, मेहनत नहीं होती। मेहनत कोई और कर रहा है, पैसा सूदखोर ट्रैक्टर दे दिया, गाड़ी दे दिया, बैठा बैठा बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही, बड़ी बड़ी स्टेट लेवल में, हाँ, नेशनल लेवल में कंपनियां, सूद की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही। लिहाजा एक मोमिन को हत्तल इम्कान पूरी तरह से सूद से मुकम्मल तरह से उसको बचना चाहिए। और आखिरत में भी इसके लिए परेशानी, सूरह बकरा की आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमूना कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कि सूदखोर जो दुनिया में सूद खाते थे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आएंगे, वो ऐसे रहेंगे, एक आम आदमी की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे रहेंगे कि गोया उनके बदन में शैतान घुस गया। शैतान आंग में आ गया, हरकतें कैसे करते वैसे हरकतें करने लगेगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सूदखोरी से बचाए। मसला ये है कि क्या सूद का पैसा मस्जिद के बैतुल खला, बाथरूम्स वगैरह के लिए डाल सकते हैं? ऐसी सोच है हमारी कि बाथरूम क्या मस्जिद का हिस्सा नहीं आ सकता?
बाथरूम क्या इंसान की एक जरूरत नहीं है? बाथरूम के आदाब हमारी शरीयत ने सिखाई है, बैतुल खला के लिए डाल सकते हैं क्या? मुझे कितनी ऐसी अजीब सोच है हमारे मुसलमानों की। बाथरूम के आदाब हमें सिखाए गए हैं। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के सामने यहूदी मजाक उड़ा रहे थे, अगे इनका नबी जो आया है देखो हर चीज सिखाता है, हाँ यहाँ तक के बैतुल खला के आदाब भी सिखाता। सलमान फारसी ने कहा हाँ, ये हमारे पास जो नबी आया हमें हर आदाब सिखाता है जिंदगी के, यहाँ तक कि बैतुल खला में जाए तो दाया पैर रख करके जाए, बायां पैर रख करके जाए, निकले तो दाया रख कर आए, दुआ पढ़कर जाए, और किबले की तरफ चेहरा और पीठ ना करें, ये सब आदाब। गोया हमारे इस्लाम में बैतुल खला जाना भी जो है 5 नेकियां कमा सकता है एक इंसान। बैतुल खला अगर जाकर आया तो 5 नेकियां कमा सकता है। कैसे? लेफ्ट पैर रख कर गया 1 नेकी, दुआ पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस 2 नेकी, बैतुल खला में चेहरा और पीठ नहीं किया 3 नेकी, पैर बाहर रख कर के आ रहा राइट पैर 4 नेकी, गुफरानक बोल कर आया 5 नेकी। अल्लाहु अकबर। बड़े फख्र से सलमान फारसी ने कहा, मेरे हाल बैतुल खला वगैरह मस्जिद का कोई भी हिस्सा सूद के पैसों से नहीं कर सकते। अब सवाल ये है, बैंकों में अकाउंट आजकल जरूरी है, तो अकाउंट जब बनेगा या तो वो करंट अकाउंट बनेगा या फिर जो है कौन सा अकाउंट बनता है? करंट और जी सेविंग अकाउंट बनता है। अब आप चाहे करंट अकाउंट बनाइए या सेविंग अकाउंट बनाइए, दोनों में भी सूद तो सूद है, बैंक मुकम्मल सूद का कारोबार करती है। करंट में अगर बनाएंगे तो आपका सूद का जो पैसा है वो भी यूज करती है कंपनियों के लिए सब, और सूद के मैदान में बढ़ता जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सेविंग अकाउंट बनाए। सेविंग अकाउंट बनाने के बाद पैसा तो सूद का आएगा, उस पैसे को क्या किया जाए? सबसे पहले उस पैसे के सिलसिले में उलमा का ये कहना है कि वो पैसे को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सब ऐसा पैसा खर्च किया जाता है। किताबों में पढ़ा हूं मैं, ऐसा पैसा बड़ी बड़ी दीगर चीजों को देखकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ऐसे पैसों को खर्च किया जाता है। या फिर कम से कम ऐसे ये मैदान, ये बिजनेस और बढ़ेगा, सूद जितना ज्यादा मिलेगा, एक को देखकर दूसरी कंपनी खुलेगी, दूसरे को देखकर तीसरी कंपनी खुलेगी, इसलिए वो पैसा ले लेना चाहिए। लेने के बाद अपना जाती इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। अब क्या किया जाए उस पैसों को? उलमा चंद रास्ते बताते हैं। नंबर 1, ऐसा गरीब, आखिरी हद तक का गरीब, अभी खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के आखिरी हद का गरीब, हाँ, यानी यहां तक उसका मामला आ गया कि वो हराम चीजें खाना पड़ रहा है, हलाल चीजें मुयस्सर नहीं होने की वजह से, तो ऐसे आदमी को दे सकते हैं। या फिर इज्तिमाई एतबार से किसी बस्ती पर आफतें आ गई, बारिश बरसात की वजह से परेशानी आ गई, तबाह हो गया इलाका, ऐसे इलाकों जैसे सुनामी वगैरह चेन्नई में आई वगैरह आई, दीगर केरला में हुआ था बरसात की वजह से, ऐसे इलाकों पर भी क्या है ये पैसा खर्च कर सकते हैं। या फिर गरीब इलाका है जहां पर रास्ते के लिए या फिर लोगों की जरूरियात के लिए पैसा वहां पर लगाया जा सकता है, और लगाते वक्त सवाब की नीयत कतान नहीं होगी। जैसे हम सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सवाब की उम्मीद रखेंगे, मगर सूद का पैसा देते वक्त सवाब की उम्मीद हरगिज बहरगिज नहीं रखेंगे, और दिल में कराहत के साथ हमें ये पैसे को दे देना चाहिए। और कई मुसलमान लोग ये भी करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, एग्जाम्पल, गलती करते हैं, जेब में लाइसेंस नहीं रखते, पुलिस पकड़ लेगा तो वो सूद का जो पैसा रहता है वो गलत बात है, ये आपकी गलती है, या आपकी गलती है, आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आप उस गलती का जुर्माना आप भरें। अगर आप उसमें से भरेंगे तो गोया आप अपने लिए खर्च कर दिया हो। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।